Thank you, Pradeep. Thank you. I'm good. Thank you. Thank you very much. Good evening, everyone. All right. All right. Friends, सब कुछ पहले का रिवाइज है अभी से डाउट्स What is the doubt? Sir, I started this awesome course 2 days back and I've completed 5 lectures. Shall I attend the live class while someone to Yes, 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 Rahul. साथ में करो. Do it together. Very good, Dharminder. Very nice. Revision करते रहो, my friends. Revision is the name of the game, my friend. Okay. मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा. Revise करना तुम्हारा काम है. Right? Revision is the name of the game. And answer writing practice, revision, test series. This is the name of the game. Right? लोगों को लगता है एक बार पढ़ लिया अमर हो गए. अमर नहीं हो गए बेटा. अमर होने के लिए मरना पड़ता है. Okay. I'll teach you everything, Nidhi. Don't worry. Okay. All right, my friends. आज का topic. Okay. Let's get to business. आज का topic is a very interesting topic, and मेरे ख्याल से what I think, right? What I think, my friends. एक बार ये chapter part समझ जाते ना, story clear हो जाती है. Okay. Your understanding of the Constitution changes by kilometers once you understand basic structure. Okay. Thank you, Rohit. God bless. All right, friends. Start करें. Start करें. Yes. All good. All right. चलो, let's start it. Registers निकाल लो, notes बनाना start करो, right? Let's have fun. Okay. Let's understand this. All right. चलो. अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, okay? बिल्कुल उसको स्टोरी की तरह समझना, okay? ना लेफ्ट सोचो ना राइट सोचो, just have fun with this, okay? जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे करते जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, just स्टोरी सुनते जाओ, just enjoy, have fun, okay? आपके बाद तुम्हें कुछ भी डाउट नहीं आएगा, just स्टोरी enjoy करो, right? Have fun. Now listen. All good? Ready? Now see, you have Constitution of India. Now don't ask me any doubt now, okay? Just enjoy this, okay? Now you have Constitution of India. Now my friends, Constitution of India is the fundamental law of the land. जहां भी बैठे हो ना वहां पे ये वर्ड यूज करो. इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. मैं तुम्हें एक ही बार बताऊंगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम बुक लिख पाओगे 2 घंटे बाद. ओके, जस्ट ध्यान से सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ. फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. ओके, नाउ व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड? ओके, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मींस, तुम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स वर्ड सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स. व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को इसलिए फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं बिकॉज ऑल मैटर इज डिराइव्ड आउट ऑफ दीस फंडामेंटल पार्टिकल्स. यहां तक बात क्लियर है? ओके, यस और नो? ओके, तुम सिर्फ यस और नो बोलो आज. ओके, और कुछ मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मैं तुमको सीधा चैंपियन बना देने वाला हूं. कल तुम हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर लोगे. ओके, सुनो मेरी बात. Now, Constitution of India is also the fundamental law of the land. Sir, क्यों fundamental law of the land? Because fundamental particles जैसे होते हैं, जैसे सारा matter is made out of electron, proton, neutron, वैसे all laws, all actions, all policies, all regulations, everything is derived out of the constitution of that country. हमारे केस में it will be the Constitution of India. इसलिए Constitution of India is called as the fundamental law of the land. यहां तक पिक्चर क्लियर है? Yes or no? प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ भी और मत बोलो, मुझे और किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है. ओके, बिल्कुल सब्जेक्ट पे बिल्कुल मर जाओगे ऑन दिस सब्जेक्ट नाउ. ओके, now so the Constitution of India is the fundamental law of the land. Sir, why is the Constitution of India the fundamental law of the land? Because sir, every other law, every other action, every other policy is derived out of the Constitution of India. Are you understanding this part? Okay, so इसीलिए बोला जाता है Constitution of India is the fundamental law of the land. यहाँ तक बात समझ में आई? तो सर अगर मुझे कोई डाउट आएगा कि लॉ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो मैं किससे पूछूं? बेटा किसी और से मत पूछना. कौन सी बुक खोलेगा? बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सर अगर मुझे कोई डाउट है कि ये एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है कि नहीं है, तो कहां देखेगा? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोल लेना. सर अब मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी करेक्ट है, ओके, कि नहीं है, तो मैं क्या देखूंगा? तो मैं देखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वेलकम शिखा. ओके, everyone is understood? So you have Constitution of India, which is the fundamental law of the land. Picture clear यहाँ तक? Very good sir. तो मैं जो कुछ भी सीखना चाहता हूँ, whatever I want to learn, सर मैं कहां से सीखूं? सर आप ना बुक खोलो Constitution of India. Very good sir. Everyone is clear यहाँ तक? Now understand. अब मैं Constitution of India खोलता हूँ. डॉक्टर अंबेडकर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक पार्ट डालना था, उसको बोला गया फंडामेंटल राइट. क्या बोला गया उसको? फंडामेंटल राइट. ध्यान से सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूं.
सर इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला? नाउ फंडामेंटल राइट्स समझने के लिए मुझे कुछ और स्टोरी समझ में आनी पड़ेगी। ओके देखो बहुत सारे पार्ट्स है। ओके ऑल योर कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ओके देखो ये इंडिया है माय फ्रेंड्स, राइट? ये इंडिया है। ओके नाउ द नेशन कॉल्ड इंडिया में दो कंपोनेंट्स है। ओके एक कंपोनेंट को हम है, हम और तुम, अभी तक तो तुम भी हो। ओके हम लोग सब सिटीजन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक और कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? स्टेट। सो स्टेट क्या होता है? नीला अभी स्टार्ट ही हुआ बच्चे। ओके स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है whatever has got the power to make a decision. Okay whatever has the power to make a decision in the country is called a state. Okay sir example दो। सर प्राइम मिनिस्टर साहब लेते हैं, वेरी गुड सर। और कौन लेता है? सर पार्लियामेंट भी लेता है सर, वेरी गुड सर। और कोई लेता है? सर जुडिशरी भी लेती है, वेरी गुड सर। सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ तो मैं कहाँ से पूछूं? तो सर ये ना स्टेट की डेफिनेशन, आप ऐसे करो, आप ना कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लो। ओके ठीक है सर। मैं ऐसे भाग कर जाता हूँ, मैं बुक खोलता हूँ और मुझे दिखता है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या बोलते हैं? आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे डेफिनेशन मिलती है स्टेट की। तो क्या डेफिनेशन मिलती है मुझे स्टेट की? मुझे मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मैंने बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिर मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। ये हमने किया हुआ था फंडामेंटल राइट्स के टाइम, आई होप सबको याद है मुझे। फिर हमने बोला था लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। फिर हमने बोला एनी अदर लोकल अथॉरिटी विद द विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बट विद इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सबको याद है ये वाली बात? एवरीवन इज क्लियर? यस फ्रेंड्स एवरीवन इज क्लियर? तो इस स्टेट से बचाने के, स्टेट बड़ा पावरफुल है, स्टेट से बचाने के लिए हमको मिल गए व्हाट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। हमको क्या मिल गए? फंडामेंटल राइट्स। यस और नो? फिर हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा ओके कि ये फंडामेंटल राइट्स, ये तुम्हें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आई होप सबको याद है। ओके दीज आर गारंटेड राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is the fundamental law of the land, which is the fundamental law of the land. Okay fundamental law of the land which is enforceable against the state. सबको ये लाइन याद हो जानी चाहिए अब तक। yes or no? and which will ensure human existence. ये मैंने recap किया है for those of you जो आज पहली या दूसरी या पहली बार या recap क्लास में है। yes or no? ये डेफिनेशन तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह याद हो जानी चाहिए। तो सर डॉक्टर अंबेडकर वाज वेरी प्राउड ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। yes or no? कितने प्राउड थे फंडामेंटल राइट्स के लिए कि उन्होंने आर्टिकल 13 लिखा। ओके उन्होंने लिखा कि एनी ऑर्डर, तुम्हें याद है लाइन? एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, any legislation, any amendment which violates, abridges, or contravenes anything in Part 3 of the Constitution. सबको याद आ रहा है? Part 3 of the Constitution of India is not law. Yes or no? Yes or no? Not law. And if you do this, then the Supreme Court or the High Court of this country will declare it as ultra vires. In other words, they will declare it as null and void. They will strike it down. इसको बोलते हैं the power of judicial review. पिक्चर सबको क्लियर है या नहीं? Yes or no? ये recap था in the 10 minutes जो हमने पहले किया हुआ है। इसका मतलब सर इसका मतलब आप बोल रहे हो फंडामेंटल राइट्स आर sacrosanct. Sacrosanct is a beautiful word. इसका मतलब है इसके खिलाफत में नहीं जाया जा सकता। पिक्चर यहां तक 100% क्लियर? यस ऑल गुड? चलो कूल। नाउ लेट्स सो कविता विद दिस वी आर डन बच्चे। व्हाई आर यू आस्किंग दिस टू अगेन? आई थिंक वी हैव डन दिस। दैट वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ आर्टिकल 13 आई गेस। ओके अच्छा आई टेल यू ऑल ऑफ यू, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आई टेल यू समथिंग, डोंट टेक मी रॉन्ग। ओके ऐसा हर एक के साथ हो सकता है, बट क्या है, मुझे ना कुछ प्रिविलेजेस है। इन अदर वर्ड्स ये एग्जाम मेरी नहीं है माय फ्रेंड्स। ओके ऑल्दो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ओके एंड आई एम वेरी इमोशनली इन्वॉल्वड इन योर रिजल्ट, लेकिन ये एग्जाम मेरी नहीं। तुम्हें मालूम है एक आदमी का मर्डर हो गया जस्ट बिकॉज वो लाइफ में लेट गया। तुम्हें मालूम है जस्ट बिकॉज ही वाज एब्सेंट एक आदमी का मर्डर हो गया था। तुम्हें मालूम है? ओके नहीं बेटा, अभिमन्यु का। अभिमन्यु की मम्मी सो गई थी जब अर्जुन उनको चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता बता रहे थे। यूर अंडरस्टैंडिंग? तो चर्चिल ने बोला था ओके द एब्सेंट आर ऑलवेज इन द रॉन्ग। मेरी बात याद रखना, एब्सेंट आर ऑलवेज इन द रॉन्ग। बेटा मैं ना 8 बजे की क्लास में 8:30 पे आऊंगा ना, शो तो मैं ही चला रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो द पॉइंट क्या होता है, तुम थोड़ा टाइम से पहले आ जाया करो, क्योंकि जो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है ना, वो ट्रेन में बैठने जैसा है। ट्रेन छूट जाती है ना, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा पिछला स्टेशन में क्या हुआ था। पिछले स्टेशन में हमने पाव भाजी खाई थी, कि पेप्सी पी थी, कि कुल्फी खाई थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और तुमको लगेगा कि आज सर सब कुछ मसालेदार खिला रहे, हो सकता है मैंने तुम्हें पहले मीठा खिलाया हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ट्राई एंड कम ऑन टाइम। मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, इसीलिए क्योंकि मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विदाउट एनी पॉलिटिकल इंसाइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो डोंट बी लेट, राइट फ्रेंड्स? ट्राई एंड कम अर्ली। ओके, मैं भी लेट हो सकता हूँ, बट मेरा मेरा चांस ये है कि भाई अब हम बड़े हो गए, ओके, तो हमारी उम्र हो गई, तो हमें थोड़ा प्रिविलेज मिलेगा। ओके, तो हम थोड़ा सा लेट हो जाते, तो सॉरी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा नुकसान ना हो। ऑलराइट, सो प्लीज कम ऑन टाइम, आपका फायदा होगा। राइट, सो और नोटिस करोगे ना तुम, अगर इफ यू डोंट टेक मी रॉन्ग ना, मैं आमतौर पे 8 बजे का मतलब 7:59-55 सेकंड पे ऑन कर देता हूँ। ओके, यू नो थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बिगाड़ दिया हमको। ओके, सो जरूरत से ज्यादा टाइम तक, बट वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट डोंट मिस द क्लास। ओके, आई टीच एवरीथिंग कविता, डोंट वरी। राइट, ऑल गुड, चलो फेयर इनफ, आज का हो गया लेक्चर, आगे चलो आगे। नाउ आर्टिकल 13, नाउ लिसन, सो कविता, ओके, focus on both the things. So now I am reading Article 13, and I am also reading. Now, Article 13 is what? Article 13 is a part of Part 3 of the Constitution. Correct? Now, one day I was reading the Constitution. Okay, ऐसे मैं पढ़ता जा रहा था. So I reached Part 20 of the Constitution. What did I reach? Part 20 of the Constitution. Okay. Part 20 of the Constitution में there is only one article. There is only one article in Part 20, and that article is Article 368. Okay. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, my friends. Moment is changing. Okay, I want 1001% attention. Now, what is Article 368 saying? It says that the Parliament can amend any part of the Constitution. मैंने क्या बोला? The Parliament can amend any part of the Constitution. Now, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरी बात। सर मेरे को है ना बड़ी टेंशन हो गई कविता, I just got very tense about this, बच्चे। Article 368 says that the Parliament can amend any part of the Constitution of India. But I was just under the impression that Dr. Ambedkar has said that you cannot violate, abridge, or contravene. So any order, any action, any legislation, any amendment cannot touch Article 13. Friends, gadbad hai. Yes or no? Friends, are you noticing? Within the Constitution, there is a gadbad. Within the Constitution of India, Article 13 says any order, any action, any legislation, any amendment which violates, abridges, or contravenes, in other words, which even touches Part 3 of the Constitution of India, it will be declared as null and void. Yes or no? Yes or no? And Article 368 is saying, sir, the Parliament can amend any part of the Constitution. Yes or no? Now, Dr. Ambedkar has written both of them. And both of them are written in the Constitution of India. Yes or no? Both of them. So I cannot say that one is lesser than the other one. In other words, my friends, if I am agar citizens ke favor mein, if I am in the favor of citizens, I will say, don't you touch my fundamental rights. Mere fundamental rights sacrosanct hai. Are you understanding? Lekin if I am in the favor of the Parliament of India, okay, I will say, kahan likha hai, my friend, कि तुम्हारा Article 13 cannot be touched. ये लिखा तो है, any part. Law has to be written and clear. जो लिखा नहीं वो है नहीं. Only what is written is law. I don't care about your emotions. Law has to be written. Law is black and white. That is why lawyers wear black and white. बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone is clear or not? Yes. To my friends, welcome to the war called as the Constitution. ये कुरुक्षेत्र है. इसमें the one hero is Article 13 and the other hero is Article 368. Article 368 says I am unlimited. Article 13 says I am the exception to Article 368. Okay, you cannot touch me. You cannot touch me. Article 368 says ये पता लिखा कहाँ है? Are you understanding? You tell me where is it written? तेरे कहने से क्या होता है? Are you understanding? Law has to be written and clear. I have got unlimited powers. ये लिखा any part. Article 13 says you cannot touch me. ये लिखा null and void. Are you understanding? And this, my friends, is battleground. Okay,
दिस इज बैटल ग्राउंड। ये वॉर शुरू हुआ 1950 में, ओके, जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये लिख दिया, ओके, और ये चला चला और चलता ही जाएगा। इट इज स्टिल गोइंग ऑन, इट विल गो ऑन टिल इटर्निटी। जब तक तुम इस इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझोगे नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अब इस पूरे चैप्टर में इस इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना पड़ेगा। The जीना पड़ेगा is that Article 13 says I am an exception to Article 368. Article 368 says there is no exception to me. I am unlimited. Are you clear with this part? We will watch the story. इसमें हीरो है, हीरोइन है, विलन है, sentiments है, everything है. Everyone is clear, okay? Shall we start? Awesome. चलो, enjoy the story. This is the story of India, and you will enjoy the story like none before. So, story start. Close your registers, just enjoy and have fun. Only when I tell you, write up. Story goes back in 1950. Okay, story goes back in 1950. पहले मैं तुम्हें उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता हूँ। उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज आर्टिकल 31. Say the word. What was Article 31? Article 31 means it is a part of which part? Everyone, which part? Part 3. Which is part 3? Part 3 is fundamental rights. Article 31 was compulsory acquisition of property. क्या मैंने बोला? It was compulsory acquisition of property. Picture clear? Compulsory acquisition of property को अगर प्यार से समझेंगे, what does compulsory acquisition property means? That if you have land, I have the right, I have the fundamental right to occupy that land. As simple as that. In other words, land पर, मेरे land पर, मेरा हक is fundamental in nature. My right over my land is fundamental in nature. Is this picture clear? All okay? So this is the background. Okay. Second background is that India has just become independent. All right. Independent India was very, very poor. Okay. And Nehru ji becomes our prime minister. So Nehru ji says, oh, India, tum bahut poor ho. Okay. But don't worry, smile. Okay, smile. Nehru ji saying, smile, Nehru. Smile, India. Why? We will do development, my dear Indians. हम development करेंगे, हम industries बनाएंगे, हम factories बनाएंगे, हम dams बनाएंगे, and one day we will become very, very rich. बिल्कुल चिंता मत करो, dear Indians. Okay. Now Nehru ji thought, चलो, let us do development. But beta, to do development you need land. Yes or no? India, state of India को क्या चाहिए? Land. Now the problem was that on the know about 80% of our land was under what is called as the zamindari system, also called as the landlord system. Yes or no? So now Nehru goes to the zamindar and says, "Dear zamindar, okay, dear zamindar, sell me your land. Okay, अपना land मुझे बेच दो." तो zamindar said, "Why?" He said, "देखो मालूम नहीं है क्या zamindar? We need development." Okay, so zamindar smiles, said, "Nehru ji, I know you need this land. Okay." तो तुम्हें अगर लैंड चाहिए हम बिजनेस करेंगे 10 times द प्राइस, खरीदना खरीद लो। नेहरू सेड, आर यू क्रेजी? ओके, इंडिया इज पुअर, हाउ विल वी गिव यू दिस मच मनी? सो जमींदार सेड, भाई बिजनेस तो बिजनेस होता है स्टेट के साथ। ओके, नेहरू सेड, जमींदार डोंट एक्ट स्मार्ट, आई एम द स्टेट, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। ओके, यू प्ले स्मार्ट विद मी, मैं लॉ बनाऊंगा, ओके, एंड आई विल एक्वायर योर लैंड। ओके, जरा भी स्मार्टनेस मत करना, भूलना मत मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे को ब्लैकमेल मत करना। I will pass land acquisition laws. Are you understanding? So Zamindar smiled again. He said, "Dear Nehru, go read the constitution." Are you understanding? Article 31 देखा है? तुमने बनाया land acquisition laws. I will run to the Supreme Court that you are violating my Article 31, and Supreme Court will declare it as null and void. Are you understanding, my friends? Picture समझ में आया, my friends? Everyone has understood the story. Yes? All good? Now, so Nehru is now very scared. Arey baba, ye kya hai? Right? Now, so Nehru goes to his best friend, Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar was the law minister at that time, and Dr. Ambedkar and Nehru both were in the Constituent Assembly. So Nehru ji goes to Dr. Ambedkar and says, "भाई ये क्या लिख दिया है यार, Article 31? Okay, अब मैं लैंड कहाँ से लेकर आऊँ?" Okay, so Dr. Ambedkar said, "Dear Nehru, चिंता की क्या बात है? हमारे तो Constitution है, इसको अमेंड कर देते। Okay, let us amend it." Okay, and they passed the first Constitutional Amendment Act 1951 to deal with Article 31. Are you understanding, friends? All okay? बेटा समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? Okay, good.
मुझे लगा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा. ओके, सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 वाज डीलिंग विद आर्टिकल 31. सो हमने क्या किया? सो नेहरू जी ने एंड डॉक्टर अंबेडकर ने एट दैट टाइम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. ओके, तो हमने बोला ओके सर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास करते हैं. उसमें हमने क्या किया? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में we inserted आर्टिकल 31A. बोलो, जहां भी बैठे हो वहां बोलो, क्या इंसर्ट किया? आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, बोलते जाओ, एंड अ न्यू शेड्यूल कॉल्ड एज द 9th शेड्यूल. बोलते जाओ कौन कौन से? मैंने क्या बोला? आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड अ न्यू शेड्यूल कॉल्ड एज द 9th शेड्यूल. अब क्या है आर्टिकल 31A? ध्यान से सुनते जाओ सब लोग. ओके, एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन भी मत ब्रीथ करना. ओके, यहीं पर ध्यान दो. आर्टिकल 31A says if the parliament passes any laws for agricultural reforms. कौन से रिफॉर्म्स? मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स. then even if, सुनते जाओ, then even if it violates a few fundamental rights, वो वायोलेट करेगा भी ना तो भी it will not be declared as null and void. Are you understanding? मैं क्या बोला? If the parliament passes any laws for agricultural reforms, then even if it violates fundamental rights, then it will not be null and void. Are you understanding? तो बेटा ये जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स था ना, ये प्यार से था, ये प्यार से बोलने का तरीका था, was nothing else but land acquisition. Okay, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, सो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म वाज नथिंग एल्स बट लैंड एक्विजिशन. ओके, फिर लिखा उन्होंने आर्टिकल 31B. आर्टिकल 31B बोला छोड़ो यार, नॉट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कोई भी लॉ, इफ द पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ. मैंने क्या बोला? पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ, और उसको इस लिस्ट में डाल दे. कौन सी लिस्ट में? जिस लिस्ट का नाम है 9th शेड्यूल. तो मैंने लॉ डाला और उसको डाल दिया 9th शेड्यूल में. तो क्या होगा सर? तो कोर्ट्स उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते. इन अदर वर्ड्स, दे कैन नॉट सी दिस, ये इनविजिबल हो जाएगा. एंड इफ द कोर्ट्स कैन नॉट रिव्यू दिस, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मालूम है कि इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. पिक्चर क्लियर है कि नहीं माय फ्रेंड्स? स्टोरी एकदम क्लियर होनी चाहिए. I'll repeat the entire story. Don't worry, everyone. Keep observing this. मैंने क्या बोला? आर्टिकल 31 है. अब ये ऐसे हो जाना चाहिए जैसे तुम लोगों के सामने हुआ था. इतना क्लैरिटी होना चाहिए. Okay. If the parliament passes any laws for agricultural reforms, then even if मतलब agricultural reforms वाला कोई law, even if it violates any specific fundamental rights, कोई बात नहीं, they will not be declared as null and void. यानी कि you are creating an exception to Article 13. समझ में आ रहा है कि नहीं? You are creating an exception to Article 13. Yes or no? सबको समझ में आ रहा है? और आर्टिकल 31B तो बिल्कुल ही दीवानगी हो गई. ओके, बोला कि छोड़ो यार एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एनी लॉ, कोई भी लॉ डालोगे उसको 9th शेड्यूल में डाल दो तो वो कोर्ट्स की तरफ से इनविजिबल हो जाएगा. इट विल बिकम इनविजिबल टू द कोर्ट्स. द कोर्ट्स कैन नॉट रिव्यू देम, देयरफॉर दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. कहानी खत्म. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पिक्चर क्लियर और नॉट? एवरीवन इज अंडरस्टूड? ओके, ग्रेट. सो नाउ यार अब तुम सच बताना. ओके, तुम लोग सच बताना. तुम्हें बुरा लग रहा है कि नहीं? तुम्हें बुरा लग रहा है कि नहीं? बिकॉज योर आर्टिकल 13 has actually been taken away. Yes or no? और आर्टिकल 31B is also hitting your fundamental rights. Yes or no? तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं? We challenge it. Say the word. We challenge it in the Supreme Court. कि my lord ये तो किया ही नहीं जा सकता. You cannot do this. Are you understanding? You cannot do this, right? आप ये constitutional amendment challenge करोगे because ये law allowed ही नहीं है. तो नेहरू के land laws, okay, of Article 31 was challenged. कौन सा अमेंडमेंट है ये? सब लोग बोलोगे. First Constitutional Amendment Act of 1951 was challenged. In fact, 1950-51 है. Okay, was challenged in the case called as Shankari Prasad versus Union of India. कौन सा केस? बोलते रहो. मैंने क्या बोला? शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951. लिख लो ये. नेरोलैक पेंट लो और दीवार पे लिख लो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दीपक तो 10 साल आगे चला गया बेटा, पीछे आ जाओ. ओके, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951. ओके, में हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया.
My lord, how dare Parliament pass first Constitutional Amendment Act of 1951? Now, please ध्यान से सुनो. Okay. So basically, हम शंकरी प्रसाद केस में क्या पूछ रहे हैं कि my lord, which article is stronger? Is Article 13 stronger or is Article 368 stronger? Actually, तो हम यही पूछ रहे हैं ना, my lord. Yes or no? So we are actually asking my lord से ये question कि my lord, is Article 13 stronger? अगर Article 13 stronger है तो you cannot do first Constitutional Amendment Act 1951. And if Article 368 is stronger, then you can do it. How simple that? Yes or no? And Supreme Court said, in our opinion, we think Article 368 is allowed to make this amendment. So we think this is valid and legal. So the first round of this battle, pehla round, goes to Article 368. So who's winning? Who's winning? So again, Dajit. Okay, is Article 368. So who was decided to be a stronger one? Article 368. अब तुम समझ ही सकते हो, पार्लियामेंट की तो लॉटरी लग गई. वाओ, ओहो, लॉटरी लग गई. वाओ, चलो जी, करो जितनी अमेंडमेंट्स करनी है करो. Okay, there is no power, no problem stopping on this part. Yes or no? And they started passing amendments after amendments after amendments. Everyone has remembered this one, Shankari Prasad versus Union of India. Yes or no? ऐसा ही अमेंडमेंट लेटर ऑन 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में हुआ. कब हुआ? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में हुआ. उसने भी इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी राइट्स को, यानी कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को हिट किया. अगेन वी चैलेंज्ड इट. Okay, again we challenged it. We challenged this in the case called as Sajjan Singh versus State of Rajasthan. बोलो कौन सा केस? जल्दी बोलो कौन सा केस? Sajjan Singh versus State of Rajasthan 1964. Again Supreme Court में हमने पूछा, my lord, is Article 13 stronger or is Article 368 stronger? Again Supreme Court said, Siddharth, Article 368 is stronger. Are you understanding? So round 2 is also going to Sajjan Singh. सबको यहां तक क्लियर है? टेक अ ब्रीदर. ओके, ऑक्सीजन ब्रीथ कर लो. यहां तक क्लियर है? 2 पिक्चर्स हो गई, स्टोरी बदलने वाली है, इंटरवल आने वाला है. समझ लो ये वाली बात. All okay? Now listen. अब बिफोर आई गो अहेड, यहां पे दोनों लिख लिया ना बेटा, सज्जन सिंह भी लिख लिया है, शंकरी प्रसाद भी लिख लिया. यस. नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड एनीथिंग फर्दर, मुझे तुम्हें एक शॉर्ट crash course देना. I have to give you a crash course into the functioning of the Supreme Court. How does Supreme Court function? Okay, ready? So in Supreme Court, the judges of the Supreme Court are arranged in what are called as benches. क्या बोलते हैं इसको? Bench. Okay, or benches. अगर one judge is sitting, तो उसको बोलते हैं single judge bench. क्या बोलते हैं उसको? Single judge bench. अगर 2 judges are sitting, okay, तो उसको बोलते हैं डबल बेंच और डिवीजन बेंच. क्या बोलते हैं उसको? डीबी, यानी कि डबल बेंच या फिर डिवीजन बेंच. ओके, प्लीज कीप राइटिंग इफ यू वांट. इफ 3 जजेस आर सिटिंग, देन इट इज कॉल्ड एज अ 3 जज बेंच, ऑब्वियसली. अब सुनो मेरी बात, राइट? तुम्हारे जितने सिविल एंड क्रिमिनल केसेस होते हैं, आमतौर पे जितने भी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो 1, 2 या 3 जजेस में खत्म हो जाते हैं. कहां तक खत्म हो जाते हैं? 1, 2 या 3 जजेस में. वेरी गुड सर. तो फिर आगे क्या? Good evening, Rahul. Now, however, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मैटर है, if I have to deal with कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मैटर, तो हमें आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब बनाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 होते हैं. कितने होने चाहिए मिनिमम नंबर? बेटा समझ में आ रहा है? प्लेन ऊपर से जा रहा है. Everyone is understanding? Everyone is understanding? Good. ऐसा मतलब गायब मत हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है तुम चलेगा. Okay. All right. So minimum number of judges 5, right? किसमें? कौन से बेंच में? Constitutional bench में, right? लेकिन the interesting बात है कि 5 से ज्यादा, okay, 6 नहीं होंगे. 5 से ज्यादा 7 होंगे. 7 से ज्यादा 8 नहीं होंगे. 8 से ज्यादा 7 से ज्यादा 9 होंगे. In other words, we'll always make an odd number. फायदा क्या? सर अगर डिस्प्यूट हो जाए ना, तो we will not have a tie. मेरी बात समझ में आ गई? We want a decision. बात समझ में आ गया? Everyone is understood? Very good. तो अब मैं तुम्हें एक डिसीजन बता रहा हूं. Okay? So now, let me explain this to you. So this is a 5 judge bench.
Okay, so this is a 5-judge bench. 1, 2, 3, 4, and 5. So these are 5 judges, all right? So what bench is this? This is which bench? Everyone, constitutional bench, right? Now, 5-judge bench mein, okay, I am asking the 5 judges, my lord, is Article 13 stronger or is Article 368 is stronger? Okay, is Article 13 stronger or is Article 368 stronger? So suppose, I'm just giving an example, okay, complete example, just for your understanding, okay. Now, the 5-judge bench mein, judge number 1 says Siddharth 13 is stronger. Okay, judge number 2 says Siddharth 13 is stronger. Judge number 3 also says Siddharth 13 is stronger. 4th also says 13 is stronger. 5th also says 13 is stronger. तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी लैंग्वेज सुनो, आप ध्यान से सुनोगे, वर्ड्स पकड़ो. वर्ड्स है a 5-judge Supreme Court bench. मैंने क्या बोला? 5-judge Supreme Court bench has unanimously decided that 13 is a stronger bench. 13 is a stronger article. Are you understanding this part? Everyone has understood? So मैंने क्या word use किया? Unanimous. Okay, unanimous मतलब 5-0. Are you understanding? Got this point? Everyone? Good. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा. अब sometimes ऐसा हो सकता है. It could be. Okay. It could be that judge number 1 says Siddharth 13 is stronger. Judge number 2 says Siddharth 13 is stronger. Judge number 3 says 13 is stronger. Judge number 4 says 368 is stronger. And judge number 5 says 368 is stronger. तो फाइनल आंसर क्या हुआ? इस बेंच का फाइनल आंसर क्या हुआ? 13. लेकिन मैं क्या बोलूंगा? लैंग्वेज सुनो. लैंग्वेज इज 5-judge Supreme Court bench. लैंग्वेज सुनो. 5-judge Supreme Court bench has given a split decision. Decision वही है. Decision क्या है? 13 is stronger than 368. Yes or no? But it is which decision? 368 decision. And मैं बोलूंगा by a 3-2 majority, the decision is 13 is stronger. Are you understanding? बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone, it can also be 4-1. I hope you're understanding. उसमें भी आंसर सेम ही होगा. Yes or no? तो इसमें मैं लैंग्वेज क्या बोलूंगा? इसमें मैं क्या बोलूंगा? जो 13 जज वाले 3 है ना, उनको मैं बोलूंगा these are 3 majority judges. मैं क्या बोल रहा हूं? These are 3 majority judges. और ये जो 368 वाले 2 है, then मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूं, मधुर एंड ये जो तुम लोग टाइम पास डिस्कशन करे जा रहे हो, तुम यू कैन नॉट इम्प्रेस मी माय फ्रेंड्स. ओके, प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट. कोई पूछ नहीं रहा तुमको सबरीमाला 3:2 4:5 ये क्या कर रहे हो? कौन देख रहा है तुम्हें ये सब कमेंट्स में? कॉन्सेंट्रेट ऑन द डैम सब्जेक्ट यार. एन एक्सपर्ट इज टीचिंग यू माय फ्रेंड्स. ये क्या बीच में टाइम पास कर रहे हो बच्चे? छੱਡ दो इनको. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट. Stick to the subject. I'll take you to Mussoorie, my friends. ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो बेटा? छੱਡो. Okay. Look at the subject. You know, you're missing Disneyland here. Okay. Forget about it. मैं तुमसे नहीं impress होने वाला. Are you understanding? तुम जो मर्जी भी कर लोगे तो मुझे नहीं impress कर पाओगे. छोड़ दो. कोई विजन में कोई बोलता है क्या? मेरी ऑफलाइन क्लास में किसी की चूं भी नहीं निकलेगी बेटा. चुपचाप से देखो. मूवी चल रही है बेटा. Absolutely. Concentrate on it. छोड़ो ये सब बातें. 3:1 कितने ऑर्डर्स आए, छोड़ो यार. Who's interesting? छोड़ो, कोई नहीं देख रहा तुमको. हमें मालूम भी नहीं तुम कौन हो. Forget it. Just imagine. You know, this is God like concentration. प्रार्थना करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे कंसंट्रेट करो. सब्जेक्ट को देखो. ओके, प्लीज ध्यान से सुनो. मैं नहीं इंप्रेस हो रहा, मुझे नहीं पता चल रहा कोई आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे इंप्रेस करना IAS ऑफिसर बनने के बाद मेरे घर आना. वेलकम टू माय हाउस. ओके, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा अच्छे से, सॉलिड पार्टी, टिपिकल पंजाबी पार्टी दूंगा. ओके, तुम भी क्या याद रखोगे, राइट? बट IAS बनने के बाद आना, उससे पहले मेरे घर पे मत आना कोई. ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पर्सन बिफोर ही बिकम्स एन IAS ऑफिसर. ओके, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन IAS ऑफिसर्स. ओके, एंड आई प्रे फॉर यू कि तुम लोग सब लोग आओ. मैं तुम सब लोगों के लिए बैंक्वेट बुक करूंगा. ओके, ह्यूज बैंक्वेट, टिपिकल भंगड़ा पाएंगे. लिसन हियर. ऑलराइट, सो व्हाट इज द पॉइंट हियर इज there are 3 judges, majority judges. Okay, और ये जो 2 खिलाफ में थे ना माय फ्रेंड्स, इनको बोलते हैं dissenting judges. What are they called as? Dissenting judges. स्पेलिंग बोल रहा हूं, DISSENTING. dissenting judges. Are you understanding? तो अब मैं तुम्हारे लिए फाइनली एक बात बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो. ओके, एंड अंडरस्टैंड. ये आई होप सबने लिख लिया था सचिन सिंह. ओके, सुनो मेरी बात. तो मैं एक बार फाइनली बोल रहा हूं. ओके, so constitutional benches are 5 judges, 7 judges, 9, 11, etc. etc. समझ में आया बेटा? अगर 5 judges हो सकता है तो it can give you
a 5:0 judgment, it can give you a 4:1 judgment, it can give you a 3:2 judgment. तीनों का आंसर सेम है, but this one will be called as a unanimous decision, this one will be called as a split decision, this one will be also called as a split decision. ये जो तीन है इनको बोलते हैं मेजॉरिटी जजेस, जिनका एक्चुअली बात मानी गई, और ये जो तो खिलाफ गए थे, who had gone against me, they are called as dissenting judges. It does not change the effect of the judgment. लेकिन जो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है ना वो ये है, जब ये 5 जजेस जजमेंट देते हैं, सब लोग अपनी अपनी फुल जजमेंट देते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हर एक अपनी अपनी फुल जजमेंट देता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 5 जजेस होंगे तो 5 के 5 जजमेंट्स आएंगी वहां पर, एक जजमेंट नहीं आएगी, 5 जजमेंट्स आएगी. ओके, तो इसका 13, इनका 13 है, इनका 13 है, इनका 13 है, इनका 368 है, इनका 368 है. ये सब लोग मुझे अपनी फुल जजमेंट देंगे 100 200 200 200 500 500 पेजेस की. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? फ्रेंड्स अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड. तो सर 5 जज बेंच ने बोला 13 इज स्ट्रॉन्गर देन 368, और मैं यहां बैठा हुआ था. मैंने बोला ना, आई एम वेरी एंग्री. तो मैं क्या करूं? मैं अपील करूंगा. व्हाट विल आई अपील? आई विल अपील अगेंस्ट व्हिच जजमेंट? अगेंस्ट व्हिच बेंच जजमेंट? 5 जज बेंच जजमेंट. तो बेटा 5 जज बेंच जजमेंट में अपील करनी है ना बच्चे, तो कम से कम 7 जज बेंच में जाओ. ओके, 7 जज में अपील करनी है ना, तो कम से कम 9 जज बेंच में जाओ, कम से कम. और 9 जज बेंच में करनी है ना, तो कम से कम 11 में जाओ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ट्रेजेडी कुछ और ही है माय फ्रेंड्स. ट्रेजेडी ये है कि ये 5 जज बेंच को रेस्टोरेंट नहीं है जो खुला ही रहेगा. द बेंच हैज टू बी मेड. Bench has to be made by the Chief Justice of India. Are you understanding? Article 145, subclause 3 gives him absolute powers कि वो बेंच बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे. Are you understanding? Bench बनाएंगे. Will he constitute the bench? Who will be sitting in this bench? Will the same members be in the above bench? Will there be a bench? Will there not be a bench? I don't know. The Chief Justice of India will make it. That is why we call him, with love and respect, Master of the Roster. Are you understanding this part? बच्चा समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone is clear. Got this point? और ओके, अभी तक केस 13 जजेस हुए, केशवानंद भारती. ऑलराइट, एवरीवन इज क्लियर माय फ्रेंड? अभी तक जो भी केसेस हुए हैं माय फ्रेंड्स, इन सब में 5 जजेस बेंच थे. इन वर्ड्स, शंकरी प्रसाद वाज आल्सो 5 जज बेंच, सचिन सिंह वाज आल्सो 5 जज बेंच. अब अगर मुझे अब करना है चैलेंज, तो मुझे मिनिमम कितना नंबर ऑफ जजेस चाहिए? आई नीड 7. लेकिन कुछ और ही हो गया. ओके, अब तुम ये भी बात समझ सकते हो, the stronger the number, the more the number, the stronger the bench, more authoritative is the judgment. इतनी तो समझ ही सकते हो. बट एक कहानी चेंज हो गई. सज्जन सिंह केस जब हो रहा था ना, तो वन ऑफ द जजेस जो यहाँ पे बैठे हुए थे ना, स्टोरी सुनते जाओ. ओके, फॉरगेट अबाउट दिस. ओके, ना बच्चों वाली बातें छोड़ दो. सज्जन सिंह जब केस हो रहा था ना, तो वन ऑफ द जजेस हु वाज सिटिंग वाज अ ह्यूज जज जिनका नाम था जस्टिस हिदायतुल्ला. जस्टिस हिदायतुल्ला वाज अ ग्रेट जज. ओके, और बड़े नामी गिरामी जज थे. I hope you know later on he became the Chief Justice of India also, and थोड़ी देर के लिए he became the acting president of India also. I hope सबको याद है. Justice हिदायतुल्ला ने अपनी जजमेंट में, in his judgment he remarked, okay, he remarked, किन्होंने रिमार्क किया? जस्टिस हिदायतुल्ला ने अपनी रिमार्क जजमेंट में दिया सज्जन सिंह केस में कि I understand कि आर्टिकल 368 is unlimited. मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 368 is unlimited, but I don't think कि आर्टिकल 368 should be used routinely against आर्टिकल 13. मेरी बात समझ में आ गई? कि मैं समझ रहा हूँ कि आर्टिकल 368 is unlimited, लेकिन आर्टिकल 368 रूटीनली आर्टिकल 13 के खिलाफ नहीं यूज होना चाहिए. ओके, बिकॉज ये है तो फंडामेंटल राइट्स ना, आफ्टर ऑल. इनको इतना मिसयूज, इतना लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए. जैसे ही जस्टिस हिदायतुल्ला ने ऐसा बोला, पूरी जुडिशरी में धमाका हो गया कि एक्चुअली कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दिस डिसीजन. यस और नो? और वो हुआ इन द नेक्स्ट केस, जब सज्जन सिंह केस के अगेंस्ट अपील डाली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक 11 जज बेंच बनाया. नॉट अ 7, नॉट अ 9, सीधा 11 जज बेंच बनाया. एंड दैट केस किसी को पता ही नहीं था कि वो हिंदुस्तान की किस्मत बदलने वाला है. दैट केस वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. से द वर्ड, व्हाट इज द केस? से द वर्ड, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस ने इंडिया की किस्मत हमेशा के लिए चेंज कर दी. द केस वाज 1967.
ओके, एंड गोलकनाथ वाज द स्टेट ऑफ पंजाब हैपेंड, एंड सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया जो कभी नहीं सोचा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया दैट आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज उन्होंने वर्ड यूज किया दैट फंडामेंटल राइट्स आर अ बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला उन्होंने? इट इज अ पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बोला, मैंने बोला बेसिक पार्ट। इंद्रजीत सुनते नहीं हो ना, तो इसलिए फंसते हो। ओके, बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ध्यान से सुनो मैं जो बोलता हूँ। ओके, ये बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में लिख कर आना, बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 368 कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट्स। बाप रे बाप, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला है आर्टिकल 368 इज वीकर देन, और आर्टिकल 13 इज स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 368। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? बात समझ में आया या नहीं? पहली बार शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड सज्जन सिंह केस को ओवर रूल किया गया। क्या किया गया? ओवर रूल किया गया। पूरी दुनिया में पटाखा उठ गया, बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर क्रिएटिंग अ लिमिट ऑन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो पार्लियामेंट जिसको लास्ट 17-18 ईयर से ये लग रहा था वी आर अनलिमिटेड, उस पे पहली बार लिमिट है, पहली बार अंकुश है। देयर इज अ लिमिट टू दैट, and that limit is fundamental rights. Are you understanding this part, friends? Everyone is clear? Everyone? Yes? Now, enjoy the story further. Okay. Now, जब ये हुआ, coincidentally, right? Coincidentally, उस टाइम पर एक खतरनाक और डेवलपमेंट हो चुकी थी। एक न्यू प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी हमारी, her name was इंदिरा गांधी, right? Coincidence, ये डिवाइन कोइंसिडेंस ही था that Indira Gandhi had recently become the Prime Minister of India, और she was a very proud parliamentarian. She had one belief, और उनका belief ये था कि क्योंकि people have chosen me मतलब इंदिरा गांधी, तो भाई मेरे पास सारी पावर्स होनी चाहिए। ओके, बिकॉज पीपल आर द सोर्स, और मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे पास सारी पावर्स होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, शी वांटेड टू बिलीव कि आर्टिकल 368 शुड बी अनलिमिटेड। और ट्रेजेडी ये है, एंड द फनी एंड द आयरॉनिक सिचुएशन ये है दैट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम ही गोलकनाथ जजमेंट होनी थी। पहले नहीं हुई, बाद में नहीं हुई, पहले ही होगी। ओके, उन्हीं के सामने होगी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, द प्राउडेस्ट पार्लियामेंटेरियन के टाइम गोलकनाथ जजमेंट आई, जिसमें पहली बार बोला कि आर्टिकल 368 is weaker than Article 13. Just one second, I'll just take this call. Sorry. Hello. हाँ जी राहुल, चलो आ गए, पहुंच गए, 2 मिनट में पहुंच गए। अभी 2 Sorry friends. क्या हो गया? What did I miss? जहर वहर हो गया? Okay. Either ways, चलो, no problem. All right. So there is a Golaknath judgment, okay, has happened, okay, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। मैडम इंदिरा गांधी को बड़ा बुरा लगा। मैडम इंदिरा गांधी सर, ये सही हो बेटा तुम, ओके, मैं आई और तुमने मेरे ही आर्टिकल 368 को लिमिट कर दिया। बट इंदिरा गांधी वाज इंदिरा गांधी, ओके, वो ऐसा रिएक्ट बड़े स्टाइल से करती थी। तो शी डिड नॉट रिएक्ट एट दैट टाइम, बट शी रिएक्टेड 4 years later by passing the 24th Constitutional Amendment Act 1971। कौन सा अमेंडमेंट बोलो? कौन सा मैंने बोला? 24th Constitutional Amendment Act 1971। ये किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। कब किया? इंदिरा गांधी ने। ओके दिवाकर, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ मेरा बच्चा, और मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ बेटा? ओके, अभी तो सभी नाराज हो गए, पता नहीं हम लोगों को कोई और ही भाषा। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हिंदी और इंग्लिश में। मुझे एक ही साथ दोनों कमेंट्स आ जाते हैं। ओके, एक ऊपर लिखता है सर स्पीक इन इंग्लिश, नीचे लिखा होता है सर आप हिंदी में बात करो। मुझे यही नहीं समझ में आता मैं बोल कौन सी भाषा रहा हूँ। मैं सोचा पंजाबी बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे तो यही नहीं परेशानी होती, मतलब एक कमेंट के नीचे ही आ जाता है।
तो मैंने कोई तो एक भाषा बोली होगी ना, सभी नाराज हो गए, अनबिलीवेबल हो गया यार। इंडिया को मैथ्स में बात करनी पड़ेगी, समझ में नहीं आ रहा बच्चे। मैं अब तो मैं कंटिन्यू, वो कविता नाराज होती है, मतलब मैं कविता सो एंगर्ड बिकॉज आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश। अब तू नाराज हो रहा है कि मैं पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, पता नहीं इंडिया में लैंग्वेज भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई, फ्रेंच बोलनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ लिसन, सो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ओके 24th। अब सुनो मेरी बात फ्रेंड, मैडम इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया। Okay, she amended Article 13 itself. Okay, she said, ध्यान से सुना, look, listen to the language. The language is nothing in Article 13. Nothing in Article 13 can affect Article 368. What? Yes, she said, dear Supreme Court, तुमने कुछ तो पढ़ा होगा ना इस आर्टिकल 13 में, जिसकी वजह से तुमको ये बात लग रहा था that Article 13 okay has become stronger than Article 368. जो कुछ भी तुम्हें लग रहा था ना, वो मैं हटा रही हूं। okay, from now onwards nothing, कुछ भी लिखा होगा आर्टिकल 13 में, वो आर्टिकल 368 को अफेक्ट कर ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 368 को मैं डिक्लेयर कर रही हूं एज अनलिमिटेड इन पावर। Are you understanding the खतरनाक substance of 24th Constitutional Amendment Act 1971? इसका कहने का मतलब क्या है my friends, कि पहली बार पार्लियामेंट has become unlimited। और my friends, अनलिमिटेड नाम की कोई भी चीज डेमोक्रेसी में नहीं होती my friends। Democracy is based on checks and balances. Are you understanding this part? Democracy और अनलिमिटेड ब्लैक एंड व्हाइट है। ओके, तुम्हारा डेमोक्रेसी और वर्ल्ड के डेमोक्रेसी में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं हो सकती। इवन इफ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यू आर आंसरेबल टू समबडी, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट, यू आर आंसरेबल टू समबडी, स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस, यू आर आंसरेबल टू समबडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पुलिस, यू आर आंसरेबल टू समबडी। डेमोक्रेसी एंड अनलिमिटेड ब्लैक एंड व्हाइट है। इट इज फायर एंड वाटर, इट डज नॉट फंक्शन। कैन आई से वेरी सेफली माय फ्रेंड्स दैट 24th Constitutional Amendment Act 1971 अगर चल गया तो it will murder or democracy? Yes or no? It will destroy democracy? Yes or no? Got this point? So पूरा इंडिया घबरा गया भाई, खत्म हो गया डेमोक्रेसी, मुबारक हो डिक्टेटरशिप, गेम इज ओवर। 24th Constitutional Amendment Act 1971, ये पता नहीं क्यों हंस रहा है, ओके, तो दुखी होना चाहिए, because democracy is over. Are you understanding this part? So 24th Constitutional Amendment Act 1971 was considered a murder of democracy. Picture getting clear or not? बात समझ में आया? Yes or no? Everyone has understood. Now, जैसे ये होगा तो बेटा तुम क्या करोगे? तुम भाग कर जाओगे सुप्रीम कोर्ट। माय लॉर्ड, आप ये कैसे कर सकते हो? And that huge case was called as Keshavananda Bharati versus State of Kerala. What did we do in Keshavananda Bharati versus State of Kerala? First thing, हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, माय लॉर्ड, पहले बताओ माय लॉर्ड, 24th Constitutional Amendment Act 1971 इज इट वैलिड या फिर इट इज नॉट वैलिड? नंबर 2, माय लॉर्ड, आप बताओ कि इज गोलकनाथ जजमेंट करेक्ट और रॉन्ग? एंड लास्ट माय लॉर्ड, पुराना क्वेश्चन फिर आंसर दे दो प्लीज, इज आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्गर और इज आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर? Keshavananda Bharati judgment was argued before a 13-judge Supreme Court bench headed by Chief Justice of India at that time, Chief Justice Sikri. Are you understanding this part? Okay, ये रिकॉर्ड है, इससे पहले इतने जजेस एक साथ कभी नहीं बैठे, इसके बाद नहीं बैठे। Are you understanding? 13-judge Supreme Court bench, 6 months, right? Day to day argument हुआ, okay? Day to day arguments हुए। तुम्हारे ऐसा कोई लॉयर नहीं है जिसका तुमने नाम सुना हो, who is not a nami girami lawyer, who has not argued in this, including Mr. Ram Jethmalani, including Falina Nariman, including Shanti Bhushan, name it, everyone, Soli Sorabji, everyone is, but the greatest of the lawyer ने भी इसमें आर्गुमेंट किया। The greatest lawyer in India was Nani Palkhiwala. Nani Palkhiwala साहब ने भी इस केस में आर्गुमेंट किया। Are you understanding this part? जब इस केस का फाइनल आंसर आया, the final answer आया, तो उसी दिन सचिन तेंदुलकर भी आया था। Okay, yes, it was the birthday of Sachin Tendulkar, 24th April 1973 को केशवानंद भारती की जजमेंट आई, और उस दिन तुम्हारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन ऑफ हिंदू था, द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। क्या हेडलाइन थी? द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। और ये तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन बन गया। Why is Keshavananda Bharati versus State of Kerala case called as
द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। मैं तुम्हें अभी इसको डिटेल में बताऊंगा, ये सब में लिख लिया ये वाली बात, एवरीवन हैज कॉपी दिस। So which is the case that saved democracy? The case that saved democracy is Kesavananda Bharati versus State of Kerala 1973. 3 questions were asked. 24th Constitutional Amendment Act 1971 is valid or not? Golaknath judgment is valid or not? Is Article 13 strong or is Article 368 strong? The headlines of this, the decision came on 24th April 1973. It was described as the case that saved democracy. Why, Amir? Why are you happy tears? Why are you emotional? अरे यार इतना खतरनाक, इतना बड़ा मैसेज नहीं आता मुझे। ऑलराइट अमी, लव यू, गॉड ब्लेस बच्चे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ऑलराइट, ऑल गुड। अच्छा आगे चले। अगर तुम्हें अब ये समझ में आ गया, तुम्हारा काम हो गया। ओके, अंडरस्टैंड दिस। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, 2 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, काम खत्म। ऑलराइट, बाकी सब टाइम पास। ओके, ये अगर तुम 10,000 बुक्स पढ़ोगे ना तो भी नहीं आएगा। ओके, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, राइट। नाउ इस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। ओके, पार्ट 3 तो इस मूवी का हीरो है। ओके, नाउ मजा आ रहा है? आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। पीयूष, आपको किसने बता दिया मुझे और कोई सब्जेक्ट आता है? मुझे और कोई सब्जेक्ट नहीं आता बेटा। ओके, ये है फंडामेंटल राइट्स। राइट, ये पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे ऐसे करके हम पार्ट चलते जाते हैं। ठीक है, चलो सर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स है, बट और भी बहुत सारी चीजें। ओके, सो इंडिया में डेमोक्रेसी भी है, इंडिया में रिपब्लिक भी है। ओके ओके, इंडिया में सेक्युलरिज्म भी, पता नहीं क्या क्या है यार। आई होप यू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, इंडिया एक आइडिया है। बच्चे मेरी बात प्लीज समझो। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, इंडिया इज एन आइडिया जिसको हमने एक बॉर्डर में डाल दिया। ये सुनो, जिससे रिलेटेड एक पॉपुलेशन है। सुनो, एक आइडिया होता है माय फ्रेंड्स, एक नेशन एक आइडिया होता है। राइट, हमें लगा डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म वाला एक कंट्री होनी चाहिए। वी ऑल बिलीव इन दिस आइडिया, इसलिए इंडिया है। इंडिया है क्या? ओके, इंडिया इज एन आइडिया। वैसे पाकिस्तान इज एन आइडिया। ओके, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज एन आइडिया, रशिया इज एन आइडिया, इजराइल इज एन आइडिया। राइट, इंडिया इज आल्सो एन आइडिया। ये सुनो, और ये आइडिया किसने बताया हमको? ध्यान से सुनो माय फ्रेंड्स, गिव मी योर 1000% इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। Who gave this idea to us, or who adopted this idea? This was given by the founding fathers. Dr. Ambedkar ने ये आइडिया बोला। ओके, उन्होंने बोला यार ये है हमारा आइडिया, दिस इज आवर आइडिया ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज आवर आइडिया ऑफ मेकिंग अ नेशन। यस और नो? एवरीवन इज अंडरस्टूड? सो इंडिया इज एन आइडिया। वैसे पाकिस्तान इज एन आइडिया, अमेरिका इज एन आइडिया, कनाडा इज एन आइडिया, एवरीबॉडी इज एन आइडिया। वेरी गुड सर, माय आइडिया इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नाउ व्हाट इज मैडम इंदिरा गांधी डन? मैडम इंदिरा गांधी सेड कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स माय पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर्स। Yes or no? Listen to me very carefully. Okay. So I can destroy Article 13. I can take away Article 13. बात समझ में आया या नहीं? Yes or no? So Article 368 is unlimited. मेरी बात ध्यान से सुनना. I'm expecting you to be very sharp. Okay. Unlimited है. मुझे कोई रोक नहीं सकता. इसीलिए मैं पार्ट 3 को अमेंड कर सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ, मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, मैं रिप्लीट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछूं मैडम इंदिरा गांधी से। मैडम इंदिरा गांधी, जब आप अनलिमिटेड ही हो गए तो आप पार्ट 3 पे क्यों रुकोगे? ओके, आप तो एक दिन डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप भी लिख दोगे। ओके, यस और नो? जब आप अनलिमिटेड ही हो तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो हु इज टू से कि कल आप रिपब्लिक की जगह पे मोनार्की लिख दो, सेक्युलर की जगह इस्लामिक रिपब्लिक, हिंदू रिपब्लिक, क्रिश्चियन रिपब्लिक। मैडम इंदिरा गांधी से ना 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 ना, मैं ये नहीं करूंगी। अरे बाबा, कौन बोलता है कि आप नहीं करोगे या करोगे? आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जब आप अनलिमिटेड हो बेटा, कोई आपको पावर देता है अनलिमिटेड, तो जब कोई बॉर्डर ही नहीं है तो उसको रोकने वाला कौन है? यू अंडरस्टैंडिंग? तो भैया तिरंगे का रंग, तिरंगा हटा के चौरंगा बना दो। ओके, वो भी तो कोई स्टॉपिंग नहीं है। इंडिया का नाम पाकिस्तान रख दो, कुछ भी कर सकते हो। वो तो अनलिमिटेड हो गया ना माय फ्रेंड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरी बात समझ में आई या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? Because what is Article 3? What is 24th Amendment doing? 24th Amendment is giving you unlimited powers. So who is to say this unlimited powers are going to stop here? कौन बोलता है वो यहाँ रुकेगा? क्या पता हम यहाँ चले जाए, क्या पता हम इसको उड़ा दें, क्या पता हम इसको उड़ा दें। Yes or no? I hope you are understanding the background. Okay, आप समझो मेरी बात। और यही चक्कर हुआ in the केशवानंदा भारती जजमेंट। राइट, जब केशवानंदा भारती जजमेंट आया, माय फ्रेंड्स, सच बताऊं, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, इफ आई एम एट योर प्लेस
और मैं आर्टिकल 13 और 368 का क्वेश्चन पूछूं कि which is stronger, तो बेटा if I read article 13 and if I read article 368, actually speaking there is no answer to this question, because if I read plain simple English language, it says you cannot violate abridged contra me, and here you say any part. तो ये तो वो सुपरमैन और स्पाइडरमैन वाली स्टोरी हो गई ना, both of them are unbeatable. Okay, ये तो वही पुरानी वाली बात है कि समुद्र तेज है कि पहाड़ तेज है, you know, there's no answer to this. Okay, there is a conflict here. Okay, there is a conflict here, let's live with that conflict. तो वैसे ही बेटा जब केशवानंद भारती जजमेंट हुआ तो 13 जजेस बैठे हुए थे. ओके, 13 जजेस whoever was sitting, okay, they actually did not have an answer to this question. Okay, किसी को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं था. दूसरी बात, ये केस धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इंदिरा गांधी हो चुका था. ओके, बिकॉज हमें बचाना था. सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी वांटेड टू गिव अनलिमिटेड पावर्स टू पार्लियामेंट. ये क्वेश्चन, ये बहुत खतरनाक स्टोरी हो चुकी थी, मामला बड़ा डेंजरस हो चुका था. So when the decision had to come, तो पहले जब तक 11 जजेस ने अपना डिसीजन दिया, ओके, पूरा मीडिया देख रहा था, ओके, केशवानंद भारती जजमेंट को, जब तक 11 जजेस थे तब तक 6-5 डिसीजन था इन द फेवर ऑफ आर्टिकल 368. लेकिन 2 जजेस बाकी थे. वन वाज जस्टिस हंसराज खन्ना, और फिर लास्ट अपॉर्चुनिटी आनी थी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस सीकरी. जस्टिस हंसराज खन्ना ने एक बात प्रपोज की ओपन कोर्ट में, और उन्होंने वही पूछा जो मैंने ही बोला. उन्होंने बोला कि मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 368 सब कुछ ले सकता है. ध्यान से सुनो, मोमेंट ऑफ ट्रुथ नाउ. आर्टिकल 368 कैन टेक एनीथिंग, बट इट कैन नॉट टच द आइडिया ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It cannot destroy the very fabric of the Constitution of India. उस फैब्रिक को नहीं तोड़ा जा सकता. ओके, तुम जो मर्जी लेना ले लो, लेकिन आइडिया दैट इज इंडिया, विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, उसको तुम नहीं ले सकते. तो जस्टिस सीकरी ने जस्टिस हंसराज खन्ना को बोला आप एग्जाम्पल दो, क्या है आइडिया. तो जस्टिस खन्ना ने एग्जाम्पल दिया डेमोक्रेसी. वैसे ही अदर जजेस ने एग्जाम्पल दिया, सर डेमोक्रेसी नहीं लिया जा सकता, रिपब्लिक नहीं लिया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिया जा सकता. ओके, यू कैन नॉट टेक दिस, राइट. यू कैन नॉट टेक आर्टिकल 50, दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. सबको याद आ रहा होगा ये वाली बात. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आर्टिकल 368 तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा फैब्रिक, तुम्हारा विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं ले सकता. Why? Because कुछ तो इस देश का बेसिक आइडिया है, और उस एग्जाम्पल को माना गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या उस एग्जाम्पल को बोला गया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि हाँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है माय फ्रेंड्स, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है. इट इज एन आइडिया, इट इज अ डॉक्ट्राइन जो हमने दिमाग लगाया और बोला कि यार तुम हमारे देश का प्योर आइडिया, प्योर फैब्रिक नहीं फाड़ के फेंक सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो. एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट में बहुत बड़ी बात बोली, और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 यू आर सर्टेनली मोर पावरफुल देन आर्टिकल 13, 100%, क्योंकि तुम्हारी कोई लिमिट नहीं रखी गई है. ओके, यू कैन टच पार्ट फंडामेंटल राइट्स, लेकिन डियर आर्टिकल 368, डेमोक्रेसी में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती. पहले ध्यान से सुनना, ओके, मोमेंट ऑफ ट्रुथ माय फ्रेंड्स. ओके, पहले हमको ये लग रहा था कि ये जो लिमिट है, ये जो सीमा बांधी गई है, ओके, ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारी लिमिटेशन है. बट आज हम डिसाइड कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स तुम्हारी लिमिट नहीं है, तुम्हारी लिमिट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तुम सब कुछ कर सकते हो, खा जाओ फंडामेंटल राइट को, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? हमारा विजन, हमारा फैब्रिक, द वेरी आइडिया जिसके तहत हमने ये देश बनाया है, उसको तुम नहीं टच कर सकते. और आज हम तुम्हें एग्जांपल्स दे रहे कि इन चीजों को हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं. डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जुडिशियल रिव्यू, ऐसे 5-6 एग्जांपल्स दिए गए. आर्टिकल 50, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लेक्स रेक्स बोलते हैं. ओके, ये हमारे एग्जांपल्स है. लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जो सबसे जरूरी वर्ड है वो है ये एटसेट्रा. मतलब
मतलब इट इज नॉट एन आइडिया, इट इज एन इवॉल्विंग आइडिया। कल हम ये जिम्मेदारी जज को दे रहे हैं, कल केस आएगा, केस टू केस हम ये डिसाइड करेंगे, जज डिसाइड करेगा क्या ये नया एलिमेंट आया है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। अगर हमें लगेगा कि तुम्हारा आर्टिकल 368 बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा है, हम डिक्लेयर करेंगे उसको नल एंड वॉइड। लेकिन अगर हमको ये लगेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर रहा, हम उसको लीगल डिफाइन करेंगे। तो आज के बाद हम फंडामेंटल राइट्स को तुम्हारी लिमिट नहीं मानेंगे। आज के बाद हम तुम्हारी लिमिट सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो इसकी लाइन का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में लिमिट होती है। लिमिट हमारी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब आज के बाद फंडामेंटल राइट्स वर कंसिडर्ड नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। माय फ्रेंड्स, मेरी बात याद रखना, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ओके, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 368 से कमजोर है, उनको खा लिया जा सकता है, उनको अमेंड कर सकते हैं, उनको इंसर्ट कर सकते हैं, उनको रिपेल कर सकते हैं। किसको नहीं कर सकते? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, ये एक आइडिया है। आइडिया आइडिया आइडिया, ये जुडिशियल इनोवेशन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर जिम्मेदारी ली कि हम बचाएंगे, जजेस बचाएंगे, जजेस इंटरप्रेट करेंगे कि तुम ये अमेंडमेंट कर सकते हो या नहीं। Are you clear on this part, friends? Everyone has understood or not? Yes or no? Good. Very good. Very good. Lovely. Lovely. Thank you. Very nice. So, in the Keshavananda Bharati judgment, okay, finally, हमने एक जजमेंट दिया by a 7:6 ratio. By a 7:6 ratio, हमने एक नया डॉक्ट्राइन पैदा किया, हमने एक नया आइडिया पैदा किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको नाम दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो आज के बाद आर्टिकल 368 तुम सब कुछ ले सकते हो, बट तुम किसको नहीं टच कर सकते? तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को नहीं टच कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल ओके? ओके, सो 7:6 रेशियो को, और ये 24 अप्रैल 1973 को ये अनाउंस हुआ जजमेंट, और 7:6 रेशियो से हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद इंडिया में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का बेसिस होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल ओके? नाउ लिसन, अब कहानी थोड़ा खत्म होगी। कहानी कहाँ खत्म हुई? ओके, ऐसा थोड़ा था, इंदिरा गांधी वही थी, राइट? नाउ डू यू रियलाइज, ओके, कि सुप्रीम कोर्ट ने गेम खेल दी? तुमने रियलाइज किया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मेजर गेम खेल दिया। ओके, किसी को पता ही नहीं चला। बोले कैसे? बेटा, लॉ तो रिटन और क्लियर होना चाहिए ना। अभी अभी आप चिल्ला रहे थे, सर लॉ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, सर लॉ क्लियर होना चाहिए, ये सुनो। और अभी अभी तुमने एक नया ही आइडिया बता दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो हमने पूछा, जस्टिस सीकरी साहब, चीफ जस्टिस साहब, माय लॉर्ड, ये लिखा कहाँ है? वेयर इज इट रिटन? तो चीफ जस्टिस सीकरी सेड, सिद्धार्थ, ये कहीं लिखा नहीं है। ओके, इट इज नॉट रिटन, इट इज एन आइडिया। ओके, तो आइडिया तो माइंड ऑफ द जज में होता है। तो मैंने कहा, माय लॉर्ड, ये आप क्या कर रहे हो? ओके, बेसिक टेनेट्स ये है, बेसिक प्रिंसिपल्स ये है, लॉ हैज टू बी क्लियर, ये सुनो। तो आपने ये माइंड में डाल दिया, तो ये तो आर्बिट्ररी हो जाएगा, किसी जज को क्या लगेगा, किसी जज को क्या लगेगा। ये सुनो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिद्धार्थ, और कोई चॉइस नहीं थी ना, वी हैड टू सेव इंडिया। ओके, तो हमें तो डेमोक्रेसी बचानी थी, तो वी हैव क्रिएटेड दिस डॉक्ट्राइन, ओके, एंड वी विल प्रैक्टिस दिस नाउ। अब ये तो बड़ा खतरनाक बात हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन उनको भी बोल सकता है। प्लस 13 जज बेंच है, अगर तुम्हें इसको ओवर रूल करना है तो 15 जज बेंच के बाद जाना पड़ेगा, ये सुनो। और 15 जज बेंच तो तब आएगा ना बेटा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे नहीं, कहानी खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो भैया मुबारक हो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। बट सुप्रीम कोर्ट, माय फ्रेंड्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी इंटेंशन से ये किया था। क्यों? क्योंकि एक ही तरीका था कि हम डेमोक्रेसी बचा पाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट सेइंग दिस, सपोज सुप्रीम कोर्ट बोल देता कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूं कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसको नहीं टच कर सकते। सपोज ऐसा बोल देते, इंदिरा गांधी मैडम अगली बस लेती, ओके, पार्लियामेंट जाती और उसको अमेंड कर देती। ये सुनो, ये सुनो, तो हमने एक घोस्ट पैदा कर दिया, हमने एक भूत बना दिया। ओके, घोस्ट को है ना मारना नामुमकिन होता है, मालूम है क्यों? भूत कभी मरता नहीं, मालूम है क्यों? क्योंकि वो दिखता ही नहीं। ये सुनो, वैसे आइडिया कभी मरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो दिखता ही नहीं।
Are you understanding? Hence, it is called as a basic structure doctrine. Doctrine क्या होता है? Idea. तो हमने सुप्रीम कोर्ट ने इसको बचा लिया. Everyone has understood, my friends? बच्चे, everyone has understood. Okay. दूसरी बात ये भी थी, एक रीजन ये भी था कि 24 अप्रैल 1973 जिस दिन ये जजमेंट आया था वो चीफ जस्टिस सीकरी का लास्ट वर्किंग डे था. ओके, अगले दिन उनको रिटायर होना था. तो उन्होंने फैसला किया था कि आज ही मैं ये डिसीजन देकर ही जाऊंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज बाद में पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा. ओके, कहीं ये ना हुआ तो इंडिया की डेमोक्रेसी बाय बाय. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द हिस्ट्री पार्ट. आई डोंट गो टू मच ऑफ दिस पार्ट. एवरीवन हैज अंडरस्टूड, राइट? माय फ्रेंड्स, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो और मुझे ये समझ में आ गया है, तो मैडम इंदिरा गांधी को तो पक्का ही समझ में आ गया कि वो तो सबसे इंटेलिजेंट थी. तो मैडम इंदिरा गांधी साइड ये सही किया है सुप्रीम कोर्ट आपने. ओके, जब तक रूल चल रहे थे तब तक आप खेलते गए आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर, आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्गर. जब मैं जीतने वाली थी तो अचानक आपने एक नया बूथ क्रिएट कर दिया और उस बूथ का नाम रख दिया बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, और ये बूथ इज कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, व्हिच सेज लॉ हैज टू बी रिटन इन क्लियर. यस और नो? तो ये सही है, ये आपने गेम खेली, कोई बात नहीं. ओके, आज आप जीतो, अगले दिन मेरी बारी आएगी. ओके, so she played this game. Okay, she was a very seasoned player. She waited, और वो दिन आया during internal emergency. I hope सबको याद है. मैंने पढ़ाया हुआ शायद internal emergency तो. Yes or no? So 25th June 1975 को India went into internal emergency जो चलती गई till 21st March 1977. Yes or no? सबको याद है कि मैंने पढ़ाया हुआ शायद. Yes. So मैडम इंदिरा गांधी ने इस मौके का फायदा उठाया. सारा ऑपोजिशन तो जेल में था. Okay, सारा ऑपोजिशन was sitting in the jail. Okay. So मैडम इंदिरा गांधी ने पास किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. सबको याद है ये वाली बात? यस और नो? पॉपुलरली कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. यस. और मैडम इंदिरा गांधी ने वो किया. क्या मैडम इंदिरा गांधी ने वो किया जो किसी ने सोचा ही नहीं था. उन्होंने आर्टिकल 368 ही अमेंड कर दिया. शी अमेंडेड आर्टिकल 368 इटसेल्फ. ओके, और उन्होंने प्रोवाइड किया सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 ऑफ तो 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने आर्टिकल 368 को अमेंड किया. और उन्होंने जो लिखा उसको सुनने के लिए प्लीज कुर्सी पे बैठ जाओ. उन्होंने लिख दिया इन आर्टिकल 368 4 and 5 that from now onwards no amendment of the Constitution of India shall be challenged in any court of law. खत्म हो गई तुम्हारी डेमोक्रेसी. Are you understanding this part? She said, बहुत हो गया ये टाइम पास, game is over. No amendment of the Constitution of India shall be challenged in any court of law. Are you understanding? I hope you're understanding. Game is over, right? Now, here comes the hero of the story. I hope you're understanding कि तो डेमोक्रेसी खत्म ही होगी, गेम इज ओवर होगी, तो डिक्टेटरशिप होगी, इराक चलो, ओके, सद्दाम हुसैन बन जाओ. Yes or no? So this is, अरे कुणाल ऐसा यार, आप तो सब इमोशनल हो गए यार. Yes, she is my favorite, no doubt, but you know, but that's okay. Okay, but that's all okay. I पता नहीं why I'm blushing, you know, ऐसे पता नहीं क्या है, I don't know, but yes, I like her as a personality, okay, but not in politics term. Okay, she was a very dangerously wrong politician, but yes, personality wise she was fine. Okay, fair enough. But this was all wrong. Okay, so here it is: no amendment of Constitution of India shall be challenged in any court of law. अब I, the hero of the story, the great hero of the story was Nani Palkhiwala. नानी पालकीवाला साहब के बारे में ना ये देश ज्यादा जानता नहीं. इट्स अ वेरी सैड थिंग. ओके, ये बड़े ट्रेजेडी की बात है. नानी पालकीवाला वाज द ग्रेटेस्ट लॉयर बॉर्न. राम जेठमलानी साहब अगर 100 थे तो ये 1000 थे. एट वन टाइम द रिचेस्ट लॉयर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, और नानी पालकीवाला ने अनबिलीवेबल बुक्स लिखी इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे. ऑसम. ऐसा बोलते थे कि अगर इंदिरा गांधी किसी से डरती थी तो नानी पालकीवाला से डरती थी. ओके, he was awesome. ज्यादा दुनिया इनके बारे में इसलिए नहीं सुन पाई because he suffered in the last 10-12 years of his life from Alzheimer's. Okay, और अभी उनके थोड़ा टाइम हाल फिलहाल में उनकी डेथ हुई है. Okay, so he was awesome. He was very big lawyer. Okay, ये सारे केसेस में वो आर्गुमेंट किए थे. उन्होंने किया था सज्जन सिंह, गोरखनाथ, केशवानंदा भारती एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, लेकिन हमारे लिए तो एक गॉड है. ओके, एज लॉयर्स, कोर्ट रूम जीनियस, उनके बुक के कभी मौका मिला तो पढ़ लेना. ओके, अभी मत पढ़ना. अब चक्कर क्या है, नानी पालकीवाला को लगा अब मेरा मौका. ओके, ऐसा बोला जाता है कि नानी पालकीवाला जो कि खुद इतने बड़े लॉयर थे, उनका बेस्ट आर्गुमेंट आज तक का 6 घंटा उन्होंने आर्ग्यू किया इन द बिग केस कॉल्ड एज मिनर्वा मिल्स केस. ओके, जिसमें आर्टिकल 368 4 and 5 जो अभी मैडम इंदिरा गांधी ने अमेंड किया वो चैलेंज किया गया. वो केस था द मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस. नानी पालकीवाला ने आर्गुमेंट किया एंड उस टाइम पर
जस्टिस चंद्रचूड़, जो अभी हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब के फादर जस्टिस वाई चंद्रचूड़ वाज चीफ जस्टिस, और उनके सामने ये आर्ग्यूमेंट हुआ। और आर्ग्यूमेंट में आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स, इतना तो तुम समझ ही जाओगे कि मैडम आर्टिकल 368 से क्या ले गई है आपका। मैडम ने ले लिया है जुडिशियल रिव्यू, यस और नो। और अगर तुम्हें याद हो रहा है तो थोड़े टाइम पहले केशवानंदा भारती जजमेंट में यह बात बोली गई थी कि जुडिशियल रिव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। याद है ना कि नहीं, यस और नो। तो नानी पालकीवाला साहब की आर्ग्यूमेंट और फाइनल डिसीजन आया और जस्टिस चंद्रचूड़ की ये स्टेटमेंट अमर हो गई। उन्होंने बोला, मैडम, आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 and आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5 is hereby declared null and void, null and void, because it is violating, bolo my friends, bolo 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 bolo, basic structure doctrine of the Constitution of India by touching judicial review। और उनकी स्टेटमेंट थी, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। ये दीवारों पे लिख लेना माय फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट ने तुम्हारे देश को बचा के रखा हुआ है माय फ्रेंड्स। एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। मैं तुम्हें बहुत बार पूछूंगा, ये बात लाइन याद रखना। एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके, दैट इज व्हाई मिनर्वा मिल्स केस को बोला जाता है, मिनर्वा मिल्स केस को डिस्क्राइब किया जाता है एज द केस दैट इवॉल्व्ड the basic structure doctrine, the case that evolved the basic structure doctrine। okay, point yahan pe kya tha, the case that gave birth was Keswananda Bharati judgment, lekin the case that evolved basic structure doctrine was the Minerva Mills case of 1980। are you clear on this part or not? 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, ओके, उन्होंने कैबिनेट में प्रपोजल दिया हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब को। 2014 की बात कर रहा हूं माय फ्रेंड्स, ओके। और प्रणब मुखर्जी साहब को बोला कि उत्तराखंड में, ओके, कांग्रेस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो। मुझे पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, वैसे तुम छोटे थे, तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा, ओके, 5 साल हो गए। जब प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का रिव्यू आया तो हरीश रावत, सुनते जाओ मेरी बात, हरीश रावत कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया, ओके, इन द उत्तराखंड हाई कोर्ट। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की नैनीताल बेंच में, ओके, ये डिसाइड हुआ। और नैनीताल बेंच ने नरेंद्र मोदी साहब की इस डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स के हेडलाइंस था, अगले दिन का हिंदुस्तान टाइम्स का हेडलाइंस था, टेल द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साहब को बता दो दैट ही इज नॉट द किंग ऑफ इंडिया। और आखिरी लाइन थी, याद रखो कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, is under judicial review, quoting Minerva Mills case। ये होता है माय फ्रेंड्स फर्क, जब एक सॉलिड जजमेंट आती है और वो देश को कब तक बचाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो से अ साइलेंट थैंक्स टू दीज ग्रेट जजेस जिन्होंने तुमको बचा के रखा हुआ। ओके, 2014, तुम समझो 34-35 साल हो गए और तुम्हारे देश को बचाने के लिए वो कोर्ट से निकली हुई एक जजमेंट बचा के रखती। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड? ये होती है द पावर ऑफ जुडिशरी, और ये होती है द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात समझ में आया या नहीं? Everyone has understood? All good? Yes? Okay. अब कहानी खत्म होना, ये अभी कहां खत्म हुई? ओके, लिसन। अब एक एटम बॉम्ब बीच में बैठा हुआ ना, बड़ा मजा कर रहा था, ओके, वो बड़ा शाना था, ओके, वो बैठा रहा, तुम 13-368 लड़ते रहे, ओके, और वो चुपचाप से मजे लेता रहा। वो था 9th शेड्यूल, तुम्हें याद आ रहा है? ये सुनो, वो हंसता रहा, वो बोला भाई तुम लड़ लो, ओके, और पार्लियामेंट इंजॉय कर रहा था। पार्लियामेंट बोला तुम लड़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सुनो। और हम लोग पार्लियामेंट को जो भी लॉ डेंजरस लग रहा था ना, पार्लियामेंट उसको इस 9th शेड्यूल में डालने लग गया, ओके, कि भाई ये जो बाद में लड़ते रहेंगे, यहाँ तो कोर्ट्स देख ही नहीं सकते। और किसी ने 9th शेड्यूल को देखा ही नहीं। आई होप यू रिमेंबर, इट केम फ्रॉम 1951। किसी ने इसको देखा ही नहीं। जब नेहरू जी ने ये लॉ डाले थे तो नेहरू हैड पुट 4 and later 7 laws in this 9th schedule। by the time 2007 आया, okay, there were 273 laws here, okay। पार्लियामेंट को जो अच्छा लगा ना डेंजरस, वो लॉ यहाँ डाल दिया, भैया यहाँ तो जाएगा ही नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन पाप का घड़ा तो भरता है ना माय फ्रेंड, ओके, तो भरा, हर एक की बारी आती है, यू नो।
चीता भी पीता है, एक दिन तो सबकी बारी आती है। और वो केस था IR कोहेलो केस ऑफ 2007. Say the word. What was the case? IR Coelho, when we challenged the ninth schedule also. Say the word. When we challenged the ninth schedule also. And what a beautiful judgment it is. You will be impressed like mad on this part. It's so beautiful. Okay. Supreme Court gave an awesome judgment with us. Supreme Court said, listen to me very carefully. It's almost like maths. Okay. Supreme Court said, what is ninth schedule taking away? Ninth schedule is taking away judicial review. Yes or no? मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुना. Okay. So Supreme Court said a very beautiful thing. Supreme Court said, ध्यान सुनो. Okay. मान के चलो, this is the calendar. Okay. This is the calendar. This is the calendar. Okay. अब मैं एक डेट मार्क कर रहा हूं बीच में. The date is 24th April 1973. कौन सी डेट है? क्या था इस डेट को बेटा? क्या हुआ बेटा इस डेट को? इस डेट को क्या हुआ? जल्दी बोलो. वेरी गुड. इस डेट को आया केशवानंदा भारती जजमेंट का डिसीजन. यस और नो? और सर इस दिन क्या पैदा किया हमने? हमने पैदा किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. यस और नो? यस और नो? माय फ्रेंड्स, इस दिन एक और चीज हुई. इफ यू नोटिस, ध्यान से सुनो. इससे पहले था जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू इससे पहले वाज ओनली अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 13. कविता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जुडिशियल रिव्यू प्रायर टू दिस वाज ओनली अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 13. बट टुडे, आज 24th April 1973 को, ध्यान से सुनना माय फ्रेंड्स, ओपन योर एंटायर ब्रेन हियर. 24th April 1973 को जुडिशियल रिव्यू की प्रमोशन हो गई. व्हाई? बिकॉज फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस और नो? होल्ड ऑन, कुछ भी मत लिखो. अब सुनो, इसका मतलब अगर मैं आर्टिकल 368 हूं या मैं पार्लियामेंट हूं, ध्यान से सुना. ओके. आज, ओके, कैन आई टच आर्टिकल 13? Yes. But can I touch basic structure doctrine? No. In other words, dear parliament, agar you have put any law, ध्यान से सुना, if you have put any law in the ninth schedule, in which schedule? In the ninth schedule, before 24th April 1973, before 24th April 1973, Mubarak ho, congratulations. Okay. Courts will not look into it. Why? Because you are allowed to take away judicial review. Yes or no? You are allowed. Lekin, if you have put any law in the ninth schedule after 24th April 1973, dear Parliament, you cannot take it away. Why? Because judicial review has been promoted. It has become a part of the basic structure doctrine. So you cannot touch judicial review, because it is now a bigger thing, and therefore we will look at these, and the courts have the power to declare it. If it is wrong, then we can declare it as null and void. Yes or no? Yes or no? Everyone has understood or not? Yes or no? Yes or no? So हमने ये डिसीजन कब दिया? हमने ये डिसीजन दिया 2007 में. कब दिया? कौन से केस में दिया? IR कोहेलो केस में. किस में दिया हमने? IR कोहेलो केस में 2007 में. लेकिन हमने इस डिसीजन को अप्लाई कब किया? हमने ये डिसीजन को अप्लाई किया टू एन इवेंट इन द पास्ट. इवेंट कब था? 24th April 1973 को. यस और नो? इसको मेरा बच्चा बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ. यस और नो? याद है मैंने तुम्हें आर्टिकल 20 में बताया था कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकता है. यस और नो? गॉट और नॉट? तो मैं पूछा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एग्जांपल, चिल्ला के बोल देना सर IR कोहेलो केस. व्हाई? हमने जजमेंट दिया 2007 में, बट उसको अप्लाई किया 24th April 1973 को. तो आज अगर तुम पार्लियामेंट में हो और तुम कोई लॉ डालते हो 9th शेड्यूल में, तो क्या वो जुडिशियली रिव्यू हो सकता है? यस. यस और नो? ऑल ओके फ्रेंड्स? समझ में आया? ग्रेट. अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये टॉपर मटेरियल है मैं जो तुम्हें अभी बताने वाला हूं. कि ये लॉयर्स को भी नहीं आता, मैं तुम्हें बता देता हूं. तुम्हें जजमेंट याद है? गोरखनाथ जजमेंट. सुनो, तुम्हें गोरखनाथ जजमेंट याद है? ओके. अभी गोरखनाथ जजमेंट में हुआ क्या था? गोरखनाथ जजमेंट में
पूरा ही नाउ गोलकनाथ जजमेंट में, ठीक है, वी हैड ओवर रूल्ड, ध्यान से सुनो मेरी बात, गोलकनाथ जजमेंट में वी हैड ओवर रूल्ड, ओके, ओवर रूल्ड शंकरी प्रसाद केस एज वेल एज वी हैड ओवर रूल्ड सज्जन सिंह केस। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस। तो अब ध्यान से सुनो, ओके, अब तो तुम इंटेलिजेंट हो गए, अब तो तुम्हें वकालत आ गई, ओके, अंडरस्टैंड दिस। सो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1951 में था, सज्जन सिंह केस भी 1964 में था, गोलकनाथ जजमेंट 1967 में था, करेक्ट? यस। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सपोज तुम जवाहरलाल नेहरू थे, ओके, सपोज तुम नेहरू थे, तुम स्टेट थे, तो तुमने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से क्या किया? क्या किया तुमने जीतने के बाद? तुम जीत गए तो तुमने क्या किया? तुमने इंडिया का लैंड ले लिया, यस और नो? तुमने जमींदारों से सारा लैंड ले लिया, यस और नो? तो मैं जमींदार था, मैं बड़ा नाराज हुआ, मैंने कहा यार मेरा लैंड ले लिया यार, मैं क्या कर सकता हूँ, बट यू नो रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने आज तुम्हें जिता दिया, यस और नो? यस और नो? लेकिन गोलकनाथ केस आया, एंड गोलकनाथ केस ने क्या किया है? इट हैज ओवर रूल्ड शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस, यस और नो? तो मैं जमींदार था, यस और नो? ओ मैं बड़ा खुश हो गया, वाओ यार आज मेरी बारी आई, यस और नो? अच्छे से हंस ले बेटा, यू नो, अच्छे से मैं हंस ले, यू नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं बड़ा खुश हुआ, वाओ बेटा नेहरू तब तुम जीते थे, आज मैं जीतूंगा, ओके। सो आई गो रनिंग टू द स्टेट, ओके, आई से डियर स्टेट गिव बैक माय लैंड नाउ, मेरा लैंड वापस करो, रिटर्न माय लैंड, yes or no? Friends, yes or no? I won the case now. Now it is for the first time saying 13 is stronger than 368. Give back my land. उस टाइम पे you were happy because 368 was said by 13. Yes or no? तो state is in a very dangerous problem. State says dear जमींदार क्या कर रहा है यार? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो बोला कैसे नहीं होता? When you won, you smiled, you took my land. When I won, I am smiling, I'll take back my land. तो state said dear जमींदार are you crazy? जब तेरा लैंड हमने लिया था ना, तू उस पे पटेटो उगा रहा था, आलू उगाता था, राइस उगाता था, आज उस पे भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है यार, हमने डेवलपमेंट के लिए लिया था वो, आज उस पे एनटीपीसी बना हुआ है, आज उस पे हीराकुद डैम बना हुआ है, अब मैं कैसे दूं? तो बोला जमींदार बोला ना भाई मुझे नहीं पता, गिव बैक माय लैंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स? बच्चे आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? जीतना तो जीतना है। Therefore in the Golaknath judgment, the line that was given in the last line was that this judgment shall be applied only to future transactions. ये आखिरी लाइन थी, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। तुम बेटा लाइब्रेरी में जाते रहोगे ना, तब भी तुम्हें नहीं समझ में आ जाएगा, और किसी हाई कोर्ट के जज को पूछ, हाई कोर्ट के लॉयर को पूछना, वो तुम्हें पागल कर देगा, तुम्हें समझ आ नहीं पाएंगे। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग? ओनली एप्लीकेबल टू फ्यूचर इवेंट्स। तो दो एग्जांपल्स है, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग व्हिच इज गोलकनाथ जजमेंट, और एक है डॉक्ट्राइन ऑफ retrospective application of law, which is the example called as I.R. Coelho case. Are you understanding this part? Friends, समझ में आया? तुम्हें दो एग्जाम्पल, टॉपर मटेरियल होगा अगर किसी दिन क्वेश्चन में आ गया तो। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग केस गोलकनाथ जजमेंट, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ is everyone is clear, my friends? All okay? Now one last thing, क्रिटिसिज्म है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का थोड़ा सा, ओके? क्यों है? बिकॉज ये आर्बिट्ररी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पूरा दुनिया में किसी कंट्री ने ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नहीं माना, ओके? बिकॉज ये कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी है। इट इज नॉट कवर्ड बाय द रूल दैट द लॉ हैज टू बी क्लियर, ओके? दूसरी बात कि इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? प्लीज अंडरस्टैंड। देखो हम इंदिरा गांधी को कमेंट करते हैं, हम मोदी जी को कमेंट करते हैं, हम सरकारों को क्रिटिसाइज करते हैं, पर ठीक है, पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू अस, ओके? हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल है ये लोग, अगले इलेक्शन में इनको हमें जवाब देना है, ओके? जुडिशरी इज नॉट आंसरेबल टू अस। तुम्हें जजेस के नाम भी नहीं मालूम है, ओके? दे आर नॉन डेमोक्रेटिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर उनसे कोई गलती हो गई तो कौन जवाबदारी देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड देयरफॉर देयर इज अ क्रिटिसिज्म कि it has a chance of being arbitrarily misused and there is no responsibility to a basic structure doctrine. इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के एग्जाम में लिखना मत, इतना ही लिख देना, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, ओके? इतना ही टेंशन है ना कि वन
that there is a doubt that it is arbitrary. It can be used arbitrarily. And number two, there is no democratic responsibility. Are you understanding, friends? Everyone is understood? इसके आगे तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ना कभी पढ़ना पड़ेगा, ना आना चाहिए, ना इससे ज्यादा टॉपर्स को आता. टॉपर्स को क्या, इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को भी नहीं आता. ओके, एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पार्ट? All okay? Everyone is clear? Okay, make sure that you revise this. Okay, that should be more than enough for today. I hope तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया. Okay, just revise this part, more than enough for all these things. एक बार चाहे तो पढ़ना है तो पढ़ लो. Okay, and enjoy this part. Right? ये क्या पूछ रहे हैं? Sir, does religious decrees and fatwas include the individuals violate Article 17? Article 17? Why Article 17? Abolition of untouchability. Ask me tomorrow. I'll try and clarify. Roscoe, please ask it in the doubts here. Okay? Thank you anyway. No, I will change tomorrow's morning class. Okay, we'll do only in the evening, friends. Okay, I'm sorry, वो गलती से हो गया. Okay, we'll do the morning class. We won't do morning class. We'll do evening class. Okay? Thank you. God bless.